हाय शुभो। हाय मो। कैसी है? बस बढ़िया, क्या चल रहा है तेरा? सब ठीक है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड ईमेल है, कुछ आया है। चल जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा श्योर। मेल है। श्योर, एब्सोल्युटली। मैं पढ़ती हूँ ईमेल, ठीक है ना? सो मैम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। माय फ्रेंड इज फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम। इन फैक्ट ही इज my relative also. He has upcoming exams which he cannot focus on because of this problem. The problem is that he had physical relationship when he was in class 10 and was minor, and the girl was in class 9. She too was minor. In fact, the girl is his cousin. ओह। And they said, we have kissed before it, but he also said not the girl had love for him and not he has that. Means they said that they were not in love, but that was the situation where they अर्ली। got into these kind of things. All of it was consensual of both parties. But after 2 years, the girls once said him that she had feelings for him and proposed him. हम्म। But the boy refused and said, I have to focus on my studies. And the girl threatened him that we had physical relationship before and now you are not uh, telling me this, and ask him uh, if it was his need or he had love for him. So I think what she want to say is after 2 years the girl came and वो लड़के को propose की, हाँ, ओके। कि you want to you have love for me or you want to get married to me. Now the boy says कि वो बस situational था, वो हो गया, I don't have any love for you. ओके। uh, then after the girl hang up, the boy was frightened that she will file case against him and he will be forced to marry her. After some time the boy called the girl and told her he is in love with this girl. ओह। Oh, sorry. He said that I'm in love with another girl. Means ओके। just to bypass her, he said that I'm in love in somebody else. The boy's cousin became frightened and threatened boy that she will file complaint against him on rape case and then he will be forced to marry her. The boy became puzzled and was in deep depression, but after some time things became normal. The girl messaged the boy that she pranked him and found out he has girlfriend or not. ओके। Okay. हम्म। But the boy did not believe her and he forgot to keep that message as proof and deleted all that because he thought that anyone else might see it. Now the boy is in huge depression and asking me to get a consultant from lawyer, as he did not believe that girl and thought she would tell my parents and I will be forced to marry her instead. She will file complaint against me. So my question is, if she files complaint of rape case against boy, will the boy be forced to marry her by court or local police station? If the boy is somehow found guilty, does the court have right to force the boy to marry her eventually, because both were minor during that time? Lot of information to process, and you were right, it's very complicated. Yeah. So Oh, I would just comprehend the long story short that uh, ये दोनों जो बच्चे हैं, आई वुड से वो स्कूल के बच्चे हैं। अभी उन्होंने बताया राइट कि वो 9th ग्रेड में है यस। और ये सब नहीं, 9th दो ग्रेड में साल 2 साल पहले थे। अब। अच्छा, हाँ, तो हाँ। 2 साल पहले ये लोग 9th ग्रेड में थे जब ये सब हुआ, तो ऑब्वियसली बच्चों में ये बात हुई। और एट दैट टाइम कुछ बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं एंड किड्स डोंट अंडरस्टैंड देयर बॉडी एट दैट टाइम एंड दे वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, अगर इफ दे डोंट हैव द राइट नॉलेज अबाउट इट। तो राइट। वही हुआ इनके साथ भी। एंड व्हाट हैपेंड इज दिस अ गाय ही हैड अ फिजिकल इंटीमेसी विद हिज लाइक कजन। कजन। तो कोई, हाँ, तो कोई बहन है उसकी, रिलेटिव है, तो उसके साथ उसका फिजिकल इंटीमेसी हुआ। अभी ये लड़का बहुत डर गया है उसके बाद कि घर पे किसी को पता ना चले, विच इज क्वाइट नॉर्मल।
तो फिर लड़की ने आके उससे पूछा 2 साल बाद कि आई यू इंटरेस्टेड इन मी, आई लव यू, डू यू लव मी? तो उस लड़के ने बता दिया कि नो, आई एम नॉट इनटू यू, ये नहीं हो सकता है। तो फिर उस लड़की ने उसको थ्रेटन किया कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, तो मैं घर पे सबको बता दूंगी और पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी, एंड आई विल फाइल अ रेप केस अगेंस्ट यू। ठीक है, तो फिर इसके लिए लड़के ने क्या किया, उसने बोला कि नो, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। तो एंड तक लड़की ने ये बताया कि एक्चुअली ये एक प्रैंक था विच आई ट्राइड ऑन यू टू नो वेदर यू हैव अ गर्लफ्रेंड और नॉट। तो ये बात तो यहाँ खत्म हो गई, और लड़के ने ये जो प्रैंक वाली जो बात थी ना, इसके मैसेजेस सारे डिलीट कर दिए। ऑब्वियसली ही वाज थिंकिंग कोई पढ़ लेगा तो क्या होगा, तो राइट। उसने सब कुछ डिलीट वगैरह कर दिया। और अभी वो ना इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा है कि सच में अगर उसके अगेंस्ट कंप्लेन हो गया तो, सच में अगर सबको पता चल गया तो, और क्या अगर ये केस वो करेगी भी तो उसको क्या फोर्स किया जाएगा इस लड़की के साथ शादी करने के लिए? सो दिस इज द होल स्टोरी। राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, तुझे क्या लगता है? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली ये लगता है कि द फियर और द डाउट दैट ही हैज एंड द क्वेश्चन स्पेसिफिकली दैट ही हैज आस्क्ड कि अगर कुछ लीगल इशू हुआ तो उसमें क्या कर मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम्म। Think none of us are legally qualified to answer that. So if he wants कि उसको एक legal consultation लेके पूरा चीज discuss करके to get, I think, to get the satisfaction that he needs right now, जैसे बोला है कि वो डिप्रेस्ड है, राइट? तो आई थिंक एक लीगल कंसल्टेशन किसी अच्छे लॉयर से या फिर किसी ऐसे इंसान से जिसको लॉ या इसके बारे में पता है, आई थिंक दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। और इसको छोड़ के एक और चीज मुझे लगता है कि विच एवर फैमिली मेंबर जिसपे भी इसको ट्रस्ट है, स्पेसिफिकली अपने मम्मी या डैडी, कोई भी एनीबडी हु इज एल्डर टू दिस पर्सन एंड जिसपे इसको ट्रस्ट है, आई थिंक ही शुड गो अहेड एंड डिस्कस इट विद दैट पर्सन, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू माइट कॉल इट एन एडवांटेज और अ डिसएडवांटेज। ऐसे सिचुएशंस में स्पेसिफिकली जब लड़की कुछ बोलती है तो दैट गेट्स मोर वेटेज, राइट? करेक्ट। एंड बहुत सारे लड़कों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है जस्ट बिकॉज लड़की ने कुछ बोल दिया है। तो ट्रू। आई थिंक टू सेफगार्ड हिज लाइफ, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी यंग, उनकी पूरी जिंदगी अपने आगे रखी हुई है अभी, राइट? सो आई थिंक करेक्ट। making someone aware that okay this has happened and being aware of the fact कि तुमसे गलती हुई है, whatever it is, तुमको दिमाग में नहीं आया, तुमको समझ में नहीं आया, उतनी अवेयरनेस नहीं थी, या whatever it is, गलती हो गई है। I think a good thing to do is to accept that mistake, learn from that mistake, but also वो steps लो जिससे तुम उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सको, right? So I think that is one way out, and whatever, like तेरे दिमाग में क्या आ रहा है तू बता। तो तूने जो बोला ना मो, दैट इज कम्प्लीटली ट्रू कि उसको किसी के साथ डिस्कस करना चाहिए। नाउ दैट द फैक्ट इज मम्मी पापा से क्लोज तो कोई हो नहीं सकता, राइट। और किसी और के साथ जो वो जाके डिस्कस करेगा, आई डोंट थिंक दैट विल बी फ्रूटफुल, क्योंकि कोई भी इस बात का एडवांटेज ले सकता राइट। है ना। एंड जब सेव करने की बात आएगी, nobody other than your parents will save you। करेक्ट। तो उसके मन में ये बात आ सकती है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ इसके बारे में बात करूं, हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट। राइट। फर्स्ट थिंग, राइट, आई नो दैट बहुत गंदा रिएक्शन होने वाला है, चाहे कैसे भी अप्रोच करो, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस गाय हैज दैट मेच्योरिटी इनफ अभी भी करेक्ट। कि वो जाके उस हिसाब से बात कर सके। बात कर तो सके। वो डर रहा है अंदर अंदर, बट आई वुड से, एंड आई थिंक मो यू विल ऑल्सो अग्री टू मी, कि डर तो है, कुछ बहुत झमेला भी इसके लिए होने वाला है घर पे। बट कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, अगर लॉन्ग रन की बात सोचो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक टू योर पेरेंट्स right away about this। एब्सोल्युटली। यस। You cannot lead your life like this, क्योंकि I can understand
उसको कैसा हर रोज फील हो रहा है, लाइक आई एम गिल्टी फॉर समथिंग। अगर हर मोमेंट पे घर पे किसी का फोन भी आता है तो ही इज थिंकिंग कहीं उसका तो फोन उसका नहीं आ फोन। गया, हाँ यस, कहीं मम्मी पापा को कुछ पता तो नहीं चल गया। सो कम आउट ऑफ दिस। हो सकता है वो लोग बहुत गुस्सा करें, बट एंड ऑफ द डे दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, दे हैव पास्ड दिस एज। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है। एंड करेक्ट, दिस इज वेरी कॉमन बिकॉज देर इज नॉट मच अवेयरनेस अबाउट योर बॉडी एट दैट टाइम। राइट, टॉक टू योर पेरेंट्स, आई थिंक यू विल कम टू अ सोल्यूशन। इसमें सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट। एंड जो लीगल एड की बात वो कर रहा था, ऑफ कोर्स दैट कैन बी फ्रूटफुल टू अंडरस्टैंड कि क्या कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ कंप्लेंट आ गया तो। बट देन आई वुड सजेस्ट कि तुम उस एज में अभी हो नहीं कि तुम ये सारी चीजें समझ सको। तो यस, फर्स्ट हैव दैट कॉन्वर्सेशन विथ योर पेरेंट्स एंड कंसल्ट द लीगल पर्सन विथ योर पेरेंट्स, बिकॉज या वो की वो बात है कि वो ही आगे लेके जा सकते हैं इस बात को, है ना। राइट, एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू से। तो एक ये चीज हो गई। दूसरा चीज ये है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस तुमसे जो एक गलती हो गई है उसके चक्कर में तुम 10 गलतियां और नहीं कर सकते। ट्रू ट्रू। Forcing you to get married to that girl is out of the question, it's out of the equation, right? और यस, जैसे कि शुभो ने कहा कि घर पे बताओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बट देन it will be much better than the mental stress that you are in right now। तुम्हारे या एग्जाम्स के पहले जो तुम अपने मेंटल स्टेट में हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, उससे बचने से आई थिंक अपने घर वालों को जाके बताना और उस चीज को डील करना एज अ फैमिली, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। आई ऑल्सो थिंक द सेम। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वॉट एवर बी द केस, क्योंकि इसके बाद ना क्या होगा, आज एग्जाम है, कल कुछ और होगा, परसों करेक्ट, कुछ और होगा। और इफ यू डोंट डिस्क्लोज दिस टू योर पेरेंट्स एंड इफ यू डोंट एक्चुअली टेक अ स्टेप फॉर दिस राइट नाउ, जब तुम 40 के भी हो जाओगे, 50 के भी हो जाओगे, तुम्हारी बीवी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब भी तुम सोचोगे ही उसने बता दिया तो कहीं वो हो राइट, गया तो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। बहुत, ये तूने बहुत लॉजिकल बात बोली। मैं यही बोलने वाली थी इसके बाद कि व्हाट इफ यू आर यू स्टार्ट अर्निंग एंड यू हैव अ फैमिली, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाए, और उसके बाद जैसे ये लड़की ने ऑलरेडी बोला कि मैंने प्रैंक किया था ये जानने के लिए, तो व्हाट इफ कल को वो तुमको ब्लैकमेल करना शुरू करे वंस यू स्टार्ट अर्निंग, देन क्या करोगे तुम? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये चीज को अभी के अभी एक्नॉलेज करो, इस चीज को कन्फ्रंट करो, और अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज को डिस्कस करके आई थिंक यू नीड टू जस्ट पुट एन एंड टू दिस वंस एंड फॉर ऑल, ताकि तुम्हारी लाइफ इससे आगे अच्छी बन सके। तो इसके साथ हम लोग इस वीडियो को यही एंड करते हैं एंड वी विश यू वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और हिम्मत रखो, कुछ वैसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दिन के लिए मम्मी पापा थोड़ा सा रूठ सकते हैं, बट आई थिंक दैट इज फेयर इनफ, राइट। एब्सोल्युटली, सब ठीक हो जाएगा उसके बाद, एंड आई नो दैट दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एब्सोल्युटली। और जस्ट इन केस तुमको थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, मम्मी पापा को समझाने के लिए कुछ करने की जरूरत है, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर मॉम एंड डैड। या फिर तुमको और भी कुछ हेल्प चाहिए इन दिस कॉन्वर्सेशन, write us again and probably we can try and do something to, if it is required to convey some message to your mom and dad, हम उनको भी कुछ मैसेज दे ही सकते हैं समझाने के यू लिए। हैव सेड द करेक्ट थिंग। अगर दिस इज अ वेरी गुड वे, राइट, अगर तुम में हिम्मत नहीं है मम्मी पापा से बात करने के लिए, यू कैन शेयर दिस वीडियो। ऐसे ही एक दिन शेयर कर दो तो उनको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा, तब शायद वो राइट, इतने शॉक में नहीं रहेंगे जब वो सुनेंगे तुम्हारी बात। करेक्ट, एब्सोल्युटली। So I think we wish you all the very best, or we will meet again on another video. ओके, सी यू, All right. बाय। Bye.